to liars for upcoming liars and No, first of all, message to I the was society. wanting to come for a long time, but somehow it was not working out. But चलिए, हर चीज़ का वक्त तय है, तो आज मुझे आना था यहाँ और आके अच्छा लगा. जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंथुजियाज़म है, लग रहा है कि स्टूडेंट्स में सीरियसनेस यू वांट. I found there was a spark of students who were desirous to understand and seriously pursue law, because law people do not pursue very seriously because of the image it has of being very tough initially. To understand law, people think it is very tough. They see it is everybody is so full, the space is full. But here seeing students enthusiastic, it's a good thing. And infrastructure, in a good infrastructure, I think, because for imparting any education you have to have a infrastructure, because the environment in which you study is equally important than what you study. If you study where you are perspiring, you don't have the facilities, you can't take knowledge. Knowledge should be with peaceful mind. Peaceful mind means you have a good classroom, you have good teachers, good infrastructure. Then only with a peaceful mind you can. So I'm very happy to see the infrastructure and the way they are doing it and expanding. I've been told into a lot of philanthropic work, because today's need is that people who have something now to pay back, and I think this is a good way of paying back to the society, because हमारे यहाँ कहा भी गया रिलीजन में, इस्लाम में, कि वो एक सदका जारिया होता है. मीन्स फॉर जनरेशंस, इफ यू गिव एजुकेशन it continues, the blessings continue. And what better satisfaction than being helpful in the life of a person, to make him capable of to make him capable, him or her capable of having respect in society by helping others. So you are helping somebody to help others, the larger society. It's very noble, and it has a very wide cascading effect, chain effect. And my message to the new generation is, there is no shortcut. Be patient, be truthful, faithful, work hard, don't lose patience. Initially it seems tough, but if you are perseverant, people will come. Money would also come, there is no limit. You have to be truthful to yourself, to the system, to the client, to the code. Rest, you don't have to worry. Rest, and you should be satisfied with what you have, and step by step you build up, because building up a reputation takes a whole lifetime. But losing that reputation, one instant can lose. So don't make that one incident happen, so that whatever you've accumulated goes away. And hope for the best, keep doing your duty, and I am confident that the Almighty would help you in whatever endeavor they have, and I wish them all the best. Thank you. हमारे सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ऑनरेबल जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह साहब आज हमारे कॉलेज को तशरीफ़ लाए थे. कॉलेज में प्रोग्राम था रिलीज़ ऑफ कैलेंडर ऑफ इवेंट्स, और दूसरे भी प्रोग्राम्स थे. तो उस वास्ते वो दिल्ली से आए हमारा गेस्ट बन के, और बहुत अच्छा लगा. ऑनरेबल जज जो है बच्चों से इंटरेक्ट करें, और लॉयर बनने की क्या उसूल हैं, और लॉयर को जो है उनके क्लाइंट की क्या उम्मीद रहती है, और ये सब चीज़ें बताएं. और हमको सब बहुत अच्छा लगा है. बहुत बेहतरीन प्रोग्राम गुजरा आलमी कॉलेज. क्या एक मैसेज दिया सर उन्होंने, क्या जी उनके लाइफ हिस्ट्री के लॉ जो है, जो कोर्ट की जो इज़्ज़त लॉयर से होती है, और कोर्ट की इज़्ज़त हो तो लॉयर की इज़्ज़त है, और क्लाइंट्स का भरोसा में कैसा जीतना, और क्यों किस वजह से लेट हो रहा है कोर्ट में, जो डिले हमें समझ नहीं क्या है, और जज का कितना काम रहता है. ये सिर्फ कोर्ट का काम नहीं, कोर्ट के जितने आवर्स हैं उसके बाद भी जाके कितने घंटे काम करना पड़ता है. ये सब चीज़ें बताएं, बच्चों को इंकरेज करें, और जुडिशरी के बारे में बहुत समझाया, और बच्चों को एडवाइस भी दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशरी में आइए, और जो है ये जो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मत जाइए, लिटिगेशन में आइए, इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए. बच्चों को उन्होंने एक सलाह दी. फिजिकल फिटनेस के बारे में उन्होंने ये बताया कि उनकी पहले से जो प्रैक्टिस है कि हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज करने से, क्योंकि ये मैटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कोर्ट के मैटर्स में. तो एक आदमी अगर रेगुलर है फिटनेस में, एक्सरसाइज में, तो और जो है मेडिटेशन में, तो अपने जॉब को जो है अच्छे तरीके से निभाते हैं. तो बच्चों को ये चीज़ की भी सलाह दी. अल्हम्दुलिल्लाह, आज का फंक्शन अल-अमीन कॉलेज ऑफ लॉ, विच इज़ अ यूनिट ऑफ अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी, आज के फंक्शन बहुत अच्छी तरह से गुजरा. वी वर ट्रूली ऑनर्ड टू हैव ऑनरेबल जस्टिस
Ehsanuddin Amanullah Sahib from the Supreme Court of India. He has been he has been here earlier also to Bangalore, but he has visited our college for the first time. He was very impressed with the college and the current events that are taking place here in this campus. He gave us a lot of advice, including examples from his experience as an advocate, as a judge, and as now a sitting Supreme Court judge. It was more of a fatherly advice to the upcoming new lawyers who have chosen, the students who have chosen this profession of being advocates in the future. This kind of advice is required for them. This kind of guidance is required for our students to progress in life on a very positive note. सर अभी तक मीन स्टूडेंट्स कहाँ का जज जैसी है कहाँ का प्रोफेशंस कहीं सर? Well, by the grace of the Almighty, our students have spread far and wide. The most recent example I can give you is our Ismail Zabiullah Sahib, who was a student of Al-Amin Law College, practicing lawyer, and now he is the HCGP in the High Court of Karnataka. We are proud of our students. They are all into good positions all over the place. सर बताओ सर कि आज का सुप्रीम कोर्ट देखो, आज जस्टिस अमानुल्लाह साहब आके बड़ा अच्छा इनॉग्रेशन करके ही एक नया सेशन जो 24-25 का बैच है Al-Amin लॉ कॉलेज का, इसको इनॉग्रेशन में एडवोकेट्स कैसे रहना, सोसाइटी कैसे रहना, ये कौम कैसे अपने आप को बदलना, इल्म में कैसे एम्पावर होना, ये बड़े अच्छे उनके सुझाव थे, बड़े अच्छे सजेशंस थे। और एक अच्छी तरह से एक मोमिन कैसा जुडिशरी में कैसा काबिज हो सकता है, बहुत अच्छे से जो है वो काम कर सकता है, इस मुल्क को और मिल्लत को कुछ दे सकता है। उसमें सब्र रहना चाहिए, तहमुल रहना चाहिए, कानून के ऊपर जो है इतना ही एक बिलीफ रहना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे उसको संभाल के कैसे जो है नौजवान ये सोसाइटी को कैसे बदला सकते हैं। लॉयर्स एक सोशल इंजीनियर्स हैं, वो समाज को बदला सकते हैं। अब जैसा मसाइल के ऊपर अब जैसा उल्मा जो है कोई तकलीफ दिया तो इमीडिएट रोड पे ना जाएं, लॉयर्स के सब सपोर्ट को लेकर, कानून को लेकर फिर जो है रास्ता हुकूमत में बनाएं। अब वो कोई गलत स्पीच दिया करके बोल के उल्मा सब मिल के एक FIR करे लॉयर्स को लेके, FIR करके उसका रद्द अमल अच्छा है, उसको सजा होती है, वो कानून को तोड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा है, तो इस ऐसे तोड़ने पर रोड पे ना आए, कानून को वकला को यूज करे, वकला को यूज कर जो है कैसे इसको दावपेच इसका कैसे मजबूत किया जाए, ये तरीके को जो है जज साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से जो है कौम को जो इल्म के, तालीम के सब मयार में अच्छे आने के लिए एक मैसेज दिया है। Al-Amin के लिए हैज एलुमिनी ओल्ड Al-Amin एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट होते हुए जितने इंडिया में Al-Amin है सबको मैं बोलता हूँ कि जो एसोसिएशन मेंबर बने, ये कौम को जो है एक नया रास्ता बताने के लिए हम लॉ कॉलेज स्टूडेंट, Al-Amin लॉ कॉलेज स्टूडेंट जो है हाथ से हाथ जोड़कर इस कौम और मिल्लत को, इस सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लेके आए और इसको जो है एक अच्छा एक रास्ता दे। सबसे पहले तो अल्लाह का करम है, एहसान है, आज Al-Amin कॉलेज ऑफ लॉ में जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह जो प्रेजेंट सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उन्हें मदऊ किया गया था। आज हमारे कॉलेज का एकेडमिक एक्टिविटीज़ का, स्टूडेंट्स काउंसिल का, कैलेंडर ऑफ इवेंट जो हम लोग पूरा साल जो एक्टिविटीज़ करते उसका कैलेंडर ऑफ इवेंट, और जो हमने लास्ट ईयर एक्टिविटीज़ किए थे उसका सॉनियर का रिलीज़ था। तो हमने जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह को रिक्वेस्ट किया था कॉलेज को एज ए चीफ गेस्ट आने के लिए, तो वो आज आए। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उन्होंने स्टूडेंट्स को एडवाइस भी किया कि एडवोकेट कैसा बिहेव करना कोर्ट में, जजेस के साथ कैसे बिहेव करना, एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, एक सक्सेसफुल लॉयर, सक्सेसफुल एडवोकेट बनने के लिए जजेस के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, जजेस के साथ कैसा प्रेजेंटेशन करना कोर्ट में, इन चीज़ों पर उन्होंने तवज्जो दी। और उन्होंने बताया कि लोग लिटिगेशन के साथ साथ जुडिशरी में भी हमारा रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। तो Al-Amin कॉलेज ऑफ लॉ इंशाल्लाह वो डायरेक्शन में काम करेगी कि स्टूडेंट्स को जुडिशरी में जाने के लिए ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह मुहैया करेंगे। जो हमारे सीनियर Al-Amin स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, 20-20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको बुला के हम गेस्ट लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करके इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जुडिशरी में भी जाए और कोशिश करेंगे कि लिटिगेशन में भी जाएं, क्योंकि आज का जो दौर है, आज का जो ज़माना है, उसके लिए सिर्फ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बचा सकता है। क्योंकि
हमारे में लॉ की कमी की वजह से, नॉलेज की कमी की वजह से, लॉ लीगल नॉलेज की कमी की वजह से हम देखते हैं कि लोग कई कई सालों से जेलों में बंद है, पता नहीं कि क्या जुर्म है उनका। हमारे पास कोर्टों में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अच्छे लॉयर्स नहीं है। अल-अमीन कॉलेज ऑफ लॉ का अल्लाह का करम है कि अल-अमीन कॉलेज ऑफ लॉ ने बहुत सारे लॉयर्स प्रोड्यूस किए हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट्स में। तो इसी डायरेक्शंस में एक प्रोग्राम था आज, बहुत कामयाब हुआ। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट का, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने अल-अमीन को आके स्टूडेंट से इंटरेक्शन भी किया, स्टूडेंट्स को बताया कि आपको क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है बताया। तो अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत करम। सर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स आके कॉलेज ऑफ लॉ में माइनॉरिटी के 50% एंड अबव स्टूडेंट्स हैं अब। पहले था 2009-10 में जब मैं देखा था तो स्टूडेंट्स की बहुत कमी थी। आज हम मोर देन 660 बच्चे हैं, उसमें कम से कम 300 से 350 बच्चे माइनॉरिटी कम्युनिटी से पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इस पर काम किया है लास्ट 6-7 सालों में। लीगल सर्वे या लीगल एड प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग सोसाइटी में, कम्युनिटी में जाते हैं और लोगों को बता रहे हैं कि लॉ की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि हर फैमिली में एक लॉयर होना ज़रूरी है यहाँ पे। वरना क्या होगा कि आप लोग बिना लॉयर के, बिना लीगल नॉलेज के जेलों में बंद रहेंगे बस। इसीलिए इसी डायरेक्शंस में हम लोग काम कर रहे हैं। फ्यूचर के लिए एडवोकेट का कितना अच्छा एक लड़कियों के लड़कों के लिए क्या है? हमने बहुत लड़कियों को प्रमोट किया है। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी स्कॉलरशिप भी देती है स्टूडेंट्स को। बहुत सारे गर्ल्स हमारे पास पढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट आउट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ में 286 गर्ल्स स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह लॉ में, लीगल फील्ड में, लॉयर की प्रैक्टिस में अल-अमीन के जरिए मुसलमानों का फ्यूचर अच्छा है इंशाल्लाह कर्नाटका में। ओके, ये जो प्रोग्राम होना किस तरह, जो चीफ गेस्ट आए थे, क्या एक मैसेज देने के लिए? एज ए स्टूडेंट काउंसिल ऑफ अल-अमीन लॉ कॉलेज मैं शुरुआत तो शायरी से करना चाहता हूँ। मैं अकेला ही चला जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। मेरा नाम शौकत अली है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरी बार यूनियन सेक्रेटरी बना हूँ अल-अमीन कॉलेज ऑफ लॉ का। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत बेहतरीन मौका मिला है हमको। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है। जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज हैं उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं रहता, फिर भी उन्होंने हमारे लिए, हमारे कॉलेज के लिए उनका कीमती वक्त निकाल के अल-अमीन लॉ कॉलेज पे आए। उनका तहे दिल से मैं हमारे अल-अमीन कॉलेज लॉ, हमारे यूनियन टीम से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी की। उन्होंने कहा हर एक के पास लॉयर ही नहीं तो कम से कम लॉ की नॉलेज रहना चाहिए। आज का दौर ऐसा है, आज के दौर में बहुत सारे बेगुनाह लोग यूएपीए में फंसे हुए हैं। उनको कैसे निकाले, उनको कैसे बचाया जाए, ये लॉ के जरिए से हो सकता है, वरना कोई फरिश्ता तो हम लोगों को आके बचा नहीं सकता। ये एक बहुत अच्छा टूल है हमारे पास, इसी के जरिए से हम लड़ सकते हैं। कैसा है फ्यूचर अभी आडू के ला के लिए, ला करने के बाद में क्या? अलहमदुलिल्लाह फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। कम से कम इतना तो मैं बोल सकता हूँ, इंसान की इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। पैसा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शोहरत तो दे देगा, इज्जत तो यहाँ से बहुत मिलेगी। एक बार आप एडवोकेट बन जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी इज्जत तो बरकरार रहेगी रही। तो आपका गोल क्या है आने वाले दिनों में? जब आप एक अच्छे एडवोकेट बनेंगे तो कम्युनिटी को कैसे सर्व करेंगे, किस तरह से? इंशाल्लाह मेरा पर्सनली गोल ये है कि लॉ लोगों को कैसे पहुंचाए। एक सवाल हमेशा मेरे मन में रहता है, अक्सर लोग कहाँ पे जुड़ते हैं। बहुत से लोग चाय की होटल में, यहाँ पे वहाँ पे सब लोग जुड़ते हैं। मेरा एक एम है जुम्मा की नमाज में हर एक नमाजी बन जाता है, भले वो 5 वक्त का नमाज पढ़े या ना पढ़े। जुम्मा की नमाज में हर एक बंदा, हर एक अल्लाह का बंदा मस्जिद में बैठता है। तो मेरा एक सजेशन है, जुम्मा की नमाज के बाद थोड़ी देर, एक 5 मिनट हर जुम्मा 5-5 मिनट लीगल एडवाइस दिया जाए। एफआईआर से शुरू कर दे, एफआईआर क्या है, यूएपीए क्या है, पॉस्को एक्ट क्या है, ये सब लोगों को बताया जाए। तो ये मेरा गोल है, इससे आवाम में अवेयरनेस आएगा और इंशाल्लाह बहुत सारी कामयाबी मिलेगी हम लोगों को। तो कब से शुरू करेंगे आप ये जो कह रहे हैं? इंशाल्लाह मेरा ये 4th ईयर 7th सेम है। नेक्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद हमारा पहला स्टेप, मैं और मेरी टीम ऑलरेडी हमारी यूनियन जुड़ी हुई है, हमारा एम वही है। आपका नाम? मेरा नाम शौकत अली है, मैं यूनियन सेक्रेटरी हूँ।
अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नूर मरियम है। मैं 7th से मैं पढ़ रही हूँ अलमीन कॉलेज ऑफ लॉ। 4th ईयर चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिली है हमने एक भी मिस नहीं की है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और तहे दिल से मैं सबका शुक्रिया गुजार करती हूँ कि इतना अच्छा मौका हमें अलमीन में मिल रहा है। हमारे प्रिंसिपल ला रहे हैं, फैकल्टीज इसमें जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, अलमीनी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। या ये अगर प्लेटफॉर्म में हमें नहीं मिलेगा तो हमें कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यही शुरुआत है, यहीं से ही शुरुआत करना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला और भी अपॉर्चुनिटीज लाएंगे तो हम आपकी नजर में क्या मायने रखता है जो प्रोफेशन आप चुने हैं? क्या जी, आपका गोल है? चाहे कोई पढ़ा हो कोई ना पढ़ा हो, लॉ के तहत हम सबको सब कुछ दे सकते हैं। चाहे वो हायर कर सकते हैं, नहीं हायर कर सकते हैं, लेकिन हम उन तक पहुंचा सकते हैं कि आगे चलकर इनको बहुत फायदा मिलेगा। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी फर्म में हो, लॉ तो इम्पोर्टेंट ही रहता है सबके लिए। बोलो। जी, मेरा नाम नूर मरियम है। मैं यूनियन काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट बनी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 4th ईयर चल रहा है। 7 से मैं पढ़ रही हूँ। Your designation? Ah. Yes. Myself, Prasad PT, President of Students Union, Alamein College of Law. Today we had an event of our academic year. So, Honorable Justice of Supreme Court has inaugurated the events. It's our pleasure that our Supreme Court judges been to our campus. It's our honor to please him. As we all students, he has given us many guidance how the law college students should be. And he has given lots and lots of things which is most essential for each and every human being. So it's our pleasure having him here today in our college. Thank you. And your good name? Myself Prashad, President of Student Union, Alamein College of Law. Ready, sir. बोलो। Myself, Freely. I have been passed out in Alamein College of Law in the month of August 2024. And as an alumni student, we feel pride to come to Alamein College of Law, and we have learned a lot of things here. In the sense, we have learned the legal practice, and then how to handle a client, everything, and the moot court claims and all. It is very useful for our upcoming sessions. That is, we are practicing now in a court, and now we have All India Bar Council exam that is held on November 24. It is a great privilege that we have met the current sitting judge, Justice Amanullah sir, and we have gained lot of experience and lot of knowledge from him. And also the main thing he has told us today is to a young person also should know the law, a layman also should know the law. This is the main thing he has told us, which means as an Indian citizen, not only an Indian citizen, throughout this world we have to learn a law. Law is very equal to everyone, and it is very supreme to every one of us. And I thank you for this great opportunity, and I thank our principal Wasim sir, and he has given us a great opportunity to appear here today, and we have gained lot of knowledge and experience. Thank you. Myself Chadurthi I am. I am doing 3 years LLB from Alamein Law College, and today we have the event from the Chief Justice of Supreme Court. The way he taught for us, it will helpful for us to carry out our career forward for our future, and it is very helpful to all the students, those who are present today, and it is very pleasure to meet him today.